Hello and welcome to Dr. Varsha Gaitonde's channel. Today in this discussion I am going to talk about story of green revolution varieties. As you know, green revolution changed the world's scenario of food as well as the economic conditions. As the famous saying of Dr. Borlaug, men can and must prevent the tragedy of famine in the future instead of merely trying with pause regret to salvage the human wreckage of the famine as he has so often done in the past. That means before any tragedies or before anything which are going to come, we should be well prepared before that. As you know, Green Revolution was basically based on two major crops, that is, wheat and rice. Wheat breeding era of vanishing yield barriers started in the year 1943, 2 years before that of the World War II. Here, corn, bean, potato, and wheat were the major focusing crops of Rockefeller Foundation and Mexican government in order to improve and feed the hunger population across the world. The beginning was done by a great scientist of Japan, Gonjoro Inazuka. He started working during 1917 when he collected three different germplasms, that is false, daruma and turkey red. Daruma was a native Japanese short straw variety. Fulge was a soft wheat which was introduced in Japan long back before 1900s. Then turkey red was a hard wheat. That variety was from United States. All the three varieties were having their own characters. What Inazuka did, he first crossed Fulls and Daruma. From that he got Grassy Fulls Daruma. This was made during 1917. After that, by taking Fulls Daruma and he crossed it with Turkey Red, which was a hard variety. Okay. From that cross, he obtained Norin 10 in the year 1924. Continuously, he was getting means in the breeding procedure he was taking F2, F3, F4, like that he was trying to get the uniformity, and he observed that due to the height reducing genes RHT1 and 2 he obtained lodging resistance, and this was observed by the great man, the second scientist, or we can say Salman SD, who was the agriculture advisor to USA and placed at Japan. He collected these Norin 10 wheat seeds from this particular Japanese scientist. The name was Inazuka, okay, and he has given it to Vogel. Vogel is the third scientist, remember. And here I just want to tell you something about Norin 10. The term Norin is an acronym for the Japanese Agriculture Experiment Station spelled out using Latin letters. From 150 centimeters that other varieties measured, Norin 10 measured wheat plant height up to 60 to 110 centimeter. Remember, Norin 10 is not a gene, it is a variety. RHT1 and 2 are the two genes inside this particular combination which is going to reduce the yield, or which reduced the yield to height to a greater extent. The shorter stature is a result of the reduced height genes RHT1 and RHT2. Norrington began to attract international attention. As I told you, S.D. Salmon, a renowned wheat breeder in the US Department of Agriculture at Morioka Agriculture Research Station in Honshu, he gave it to Vogel in 1940s at Washington State University, who used them to help to produce high yielding semi dwarf winter wheat varieties, of which Guinness was the first one. He tried with different combinations and he obtained Guinness, which was giving good results. Okay, this was the case in USA. Next scientist is Norman Borlaug. He was residing adjacent to USA, मतलब ये मेक्सिको में सिचुएटेड थे. एंड हिज टीम, इन्होंने क्या किया,
they were focusing their efforts on tackling the problem of lodging and rust resistance. As you know, अब तक हमने जितने भी साइंटिस्ट के बारे में बात किया था, they all were breeders. ओके, नॉर्मन बोरलॉग was a pathologist. ओके, तो इन्होंने क्या किया, इनका मेजर फोकस था रस्ट रेजिस्टेंस पे. After unsuccessfully screening the entire USDA World Wheat Germplasm collection for shorter and strong varieties, Borlaug wrote to Ogle and requested seed containing the Norrin-10 dwarfing genes. रिक्वेस्ट के ऊपर Norrin-10 सीड्स को बोरलॉग को प्रोवाइड किया गया था. Norrin-10 was a lucky break, providing both short stature and rust resistance. 1953 से इन्होंने स्टार्ट किया, क्रॉसेस बनाना स्टार्ट किया. अनफॉर्चुनेटली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ही कुड नॉट बी सक्सेसफुल. उसके बाद में फिर से इन्होंने क्रॉसेस बनाया, नए नए जर्म प्लाजस के साथ में, वर्ल्ड कलेक्शन के साथ में क्रॉसेस बनाया. फिर क्या हुआ, द सेमी-ड्वार्फ मैक्सिकन व्हीट प्रोजेनी बिगेन टू बी डिस्क्राइब्ड नेशनली एंड विद इन 7 years एवरेज व्हीट यील्ड इन मैक्सिको हैड डबल्ड. कई 600 kgs में यील्ड आता था, तो वो 1400-500 kgs पर हेक्टर में चेंज हो गया. By 1962, 10 years after Vogel's first supplied seed of Norrin-10 semi-dwarf progeny to Borlaug, 2 high-yielding semi-dwarf Norrin-10 derivatives, that is Petit 62 and Panjamo 62, were released for commercial production. इसके बाद में नॉर्मन बोरलॉग कभी रुके ही नहीं. ही कीप ऑन गोइंग, की क्रॉसेस बहुत सारे बनाया. फिर Norrin-10, ब्रेवो, देन बार्ट, ये सब बहुत ही सक्सेसफुल काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस थे. एट फर्स्ट बोरलॉग को थोड़े प्रॉब्लम्स हुए, जैसे कि हाई डिग्री ऑफ मेल स्टेरिलिटी मिला, लीडिंग टू promiscuous outcrossing, poor grain that was shriveled, soft with low gluten content. ग्लूटेन जैसे आप जानते हैं चपाती मेकिंग क्वालिटी देता है, मतलब एक कंसिस्टेंसी और स्टिफनेस और एलास्टिसिटी बोल सकते हैं, उसको देता है. तो वो ही नहीं रहा तो चपाती बनाने का या ब्रेड मेकिंग क्वालिटी ठीक से नहीं आ पाता है. उसके साथ साथ में आउटक्रॉसिंग में दिक्कत हुई, मतलब जब आप क्रॉस कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन होना है एंड यू शुड अवॉइड द सेल्फिंग, तो उसमें प्रॉब्लम होने लगी. देन ससेप्टिबिलिटी टू स्टेम एंड लीफ रस्ट, तो एक करने के लिए गए तो डिफरेंट और कंपोनेंट्स में ये फेलियर पाने लगे. लेकिन इन्होंने कहीं भी फेलियर नहीं माना, कंटिन्यूसली ही वॉज मेकिंग डिफरेंट क्रॉसेस. और उन्होंने एक अच्छी चीज़ किया, क्या है, दैट वॉज शटल ब्रीडिंग. शटल ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए डिफरेंट लोकेशंस पे और एल्स मल्टी लोकेशन ट्रायल्स बोल सकते हैं, वैसे करना. मतलब एक सीज़न में एक जगह में और एक सीज़न में, नेक्स्ट सीज़न में दूसरे जगह में. फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं इंडियन कंडीशंस में बताऊं, तो जैसे आप जानते हैं व्हीट इज़ अ विंटर क्रॉप इन इंडिया, तो हम सिर्फ विंटर का ही वेट करते बैठेंगे तो साल भर बहुत सारे साल लग जाएंगे. तो टू रेड्यूस दिस हम क्या करेंगे, विंटर नर्सरीज है इंडिया में, जैसे कि कूल हिली स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे विंटर नर्सरीज हैं. तो आपको यहाँ पे मैं एक असाइनमेंट देती हूँ कि यू शुड नेम और एनलिस्ट द विंटर नर्सरीज फॉर व्हीट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट शटल ब्रीडिंग. तो ये प्रैक्टिस करके नॉर्मन बोरलॉग ने काफ़ी अच्छा कुछ हासिल किया. तो इन्होंने और क्या क्या क्रॉसेस पाया, पंजामो 62, पिटिक 62, सोनोरा 64, लर्मारोजो 64, मायो 64, ये सब Norrin-10 ब्रेवो कॉम्बिनेशन को डिफरेंट बैक क्रॉस या क्रॉसेस बना के इन्होंने F2 F3 एक यूनिफॉर्मिटी ऑब्टेन करने के बाद में डिफरेंट वैरायटीज़ को पाया. ओके, सोनोरा 64 और लर्मारोजो जैसे आप जानते हैं, इनको इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में बांटने के लिए सोचा. तो इससे पहले किसका हाथ था, MS स्वामीनाथन का. ओके, एज यू नो बोरलॉग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन अगर हम इंडियन कंडीशंस में बोलेंगे तो स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. तो आप जानते हैं 1947 जब इंडिपेंडेंस मिला था तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनका प्रायोरिटी था कि फूड प्रोडक्शन को डिफरेंट तरीके से एनहांस करें ताकि हम
इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बने, अगर एक्सपोर्टर नहीं भी बन पाए तो कम से कम सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे वर फेसिंग लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। ओके, तो इसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट को बहुत ही स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किया और उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस टाइम में एग्रीकल्चर मतलब बहुत सारे टाइम के बाद मतलब ड्यूरिंग 1960s में क्या हुआ, एम.एस. स्वामीनाथन जब IRI में काम कर रहे थे तो नॉर्मन बोरलॉग ने वर्ल्ड वाइड मल्टी लोकेशन ट्रायल के लिए अपने वीट एक्सेशंस को भेजा था, मतलब जो भी इन्होंने नॉरिन 10 डिराइव्ड वेराइटीज़ थे उनको ट्रायल के लिए भेजा था। उस टाइम में स्वामीनाथन ने देखा कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग वेराइटीज़ है। देन व्हाट ही डिड, ही ब्रॉट इट टू द अटेंशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ IRI डॉक्टर BP पॉल उस टाइम में थे। तो उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कंसल्ट किया। उस टाइम में सुब्रमण्यम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो उन्होंने इमीडिएटली रॉकफिलर फाउंडेशन के डायरेक्टर को लेटर लिखा। फिर वहाँ से क्या हुआ कि नॉर्मन बोरलॉग को जब स्वामीनाथन सर ने लेटर लिखा था, देन ही एग्रीड टू कम टू इंडिया टू असेस द सिचुएशन एंड द कंडीशंस इन इंडिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, नॉर्मन बोरलॉग ने सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो 64 वेराइटीज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए ये मान गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसके साथ साथ में पाकिस्तान जब न्यूली हमारे साथ ही कंट्री बना था तो वहाँ पे सीटे कैरी 66 विच एट इट्स पीक वॉज ग्रोन ऑन ओवर 7 मिलियन हेक्टर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। The most widely grown variety during this period was the very early maturing variety Sonalika, which is still grown in India today. Borlaug had sent a few dozen seeds of his high-yielding, disease-resistant, semi-dwarf wheat varieties to India for testing. उसके बाद में ये सब हो गया तो MS स्वामीनाथन उस टाइम में एक साइटोजेनेसिस थे। तो ये है नॉरिन 10 का आपका एक पिक्चर। ओके, तो हाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल वीट से भी कम है। ये है आपका नॉरिन 10 वैरायटी। ओके, Borlaug and his contemporaries kicked off the Green Revolution by combining semi-dwarf rust resistance and photo-period insensitive traits. तो इस लाइन को मैंने इसलिए डाला है कि ट्रेड्स कौन से हैं आपको याद रखना है, सेमी ड्वार्फ, रस्ट रेजिस्टेंस, देन फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी, ये सारे कैरेक्टर्स ये वैरायटी न्यूली डेवलप्ड वैराइटीज़ में थे। Humanity has the creative potential to eliminate hunger and malnutrition in spite of climate change and rising demand, but we need research investment to empower agriculture system and farmers. तो यहाँ पे गोल क्या है कि फूड क्राइसिस को हम मिटिगेट करने के लिए देखना है, तो यही बोरलॉग का एक मेन मोटो था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, इंडिया में 400 टाइम्स इंक्रीज हो गया, परसेंट इंक्रीज इन विदिन 60 ईयर्स हो गया। तो आज हम वीट एक्सपोर्ट करने के लिए भी पोटेंशियल रखते हैं। बहुत सारे पूरा कन्वेंशनल बेल्ट हो या नॉन कन्वेंशनल बेल्ट हो, हर जगह में आजकल वीट ग्रो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम सेकेंड वन बात करेंगे कि राइस वैरायटी। ओके, तो ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन IR8 was the most important and revolutionizing variety। तो इसके डेवलपमेंट में हाथ था उस टाइम के CRRI के साइंटिस्ट और NRRI आजकल हम बोल सकते हैं। तो वैरायटी IR8 इर्री से डेवलप किया था, दैट इज़ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ लोकेटेड एट फिलीपाइंस। तो फिलीपाइंस वैराइटीज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद में उसमें जो भी ड्वार्फ जीन्स हैं जैसे कि पेटा और ADG वूजन है, इन सारे चीज़ों को हम अपने वैराइटीज़ में अडॉप्ट किया, डिफरेंट क्रॉस कॉम्बिनेशंस को बना के 5 टन्स जो यील्ड आता था, मतलब पहले 1 टन 2 टन ऐसे आता था, फिर 5 टन आने लगा, धीरे धीरे 10 टन्स में इंक्रीज़ हो गया। तो आजकल मैनी फोल्ड्स में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुआ है एंड ओवरऑल
नेशनल जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो क्या है कि 20 टाइम्स कॉस्ट रिडक्शन हो गया राइस पर केजी राइस में। तो इसका कंट्रीब्यूशन जाता है बहुत सारे इरी साइंटिस्ट को, स्पेशली जो खुश सर है, उसके साथ साथ में अपने पार्थसारथी सर थे उस टाइम में। फिर यहाँ पे एक फार्मर दिया है, फार्मर को मैंने लगा है डॉक्टर सुब्बा राव। ये क्या करते थे, ये फार्मर थे, इन्होंने पूरा अपने ऊपर एक ट्रायल किया, डेमो किया, मास प्रोडक्शन किया और सारे फार्मर्स में इसका IR8 को पॉपुलराइज किया। ओके, उसके साथ साथ में अदर इम्पॉर्टेंट राइस वेराइटीज़ है, जैसे कि TN1 है, IR8 को वंडर राइस बोलते हैं और जया को मिराकल राइस बोलते हैं। उसके साथ में IR20, IR34, ADT36, ADT37, ये सब इम्पॉर्टेंट राइस वेराइटीज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अपने कंट्री में। ओके, उसके साथ साथ में अगर हम इन सारे चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस अडॉप्ट किया है, इम्प्रूविंग फोटोसिंथेसिस टू इंक्रीज टोटल बायोमास, then improving the partitioning of photosynthetes and resistance to lodging while ensuring the extra biomass is translated to greater grain yield, stabilizing the physiological and molecular improvements which allow for the expression of agronomic traits responsible for raising yield potential। इन्हीं स्ट्रेटजीज के साथ 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हेल्पफुल हुए थे। ओके, तो वो 5 स्ट्रेटजीज कौन से हैं? फर्स्ट, डायरेक्ट रिलीज, जैसे अगर वीट में हो या राइस में हो, डायरेक्ट रिलीज वैरायटीज़ किया था सोनोरा 64, लर्मा रोजो, फिर IR8 को इंट्रोड्यूस किया ऐसे। उसके बाद में जब क्वालिटी इश्यूज आए, जैसे कि जब सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो का क्वालिटी मतलब रेड कलर कर्नल था, तो इससे चपाती मेकिंग कलर जो था वो अट्रैक्टिव नहीं था। फिर यहाँ पे उसमें चेंजेस लाए कलर को। फिर पूसा लर्मा और शरबती सोनोरा मॉडिफिकेशंस थे थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग, लर्मा रोजो 64 एंड सोनोरा 64 से बने। ओके, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग एक था, क्रॉसिंग प्रोग्राम अप्रोच को फॉलो किया, डायरेक्ट रिलीज किया, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रीडिंग फॉर बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस, एंड द फिफ्थ स्ट्रेटजी फॉर ब्रीडिंग फॉर द इम्प्रूविंग क्वालिटी। ओके, ये सब थे। It was all about the story of green revolution. Okay friends, so today we discussed about different scientists who contributed for the development of different varieties। फिर different varieties के बारे में जाना, green revolution में किस किस का कंट्रीब्यूशन था। ओके, इसके साथ साथ में उसी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैम्प भी रिलीज़ किया था इन द ईयर 1968 इन द कमेमोरेशन ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन एरा। तो वो अपने लिए एक प्राउड मोमेंट है। भले ही ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एनवायरनमेंट पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए, लेकिन अगर उस टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन हम अडॉप्ट नहीं करते तो एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन को हम फीड नहीं कर पाते एंड आज का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस तक भी हम नहीं पहुंच पाते। ओके, सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड कीप ऑन ब्रीडिंग फॉर better varieties, look for the better varieties, adopt the better varieties. Thank you. If you have any doubt, please put it in the comment section.